સમાચાર વાવાઝોડું ટકરાઈ ચૂક્યું છે। ગુજરાત પર વાવાઝોડાની ટકરાવાની અસર શરૂ થઈ ચૂકી છે। નકશામાં અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। આ બ્લુ આઈ જોઈ રહ્યા છો, જે ભાગ છે તે ગુજરાતની જમીન સાથે ટકરાવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। જે બ્લુ આઈનો આટલો ભાગ છે તેની ત્રિજ્યા 50 કિલોમીટરની છે। 50 કિલોમીટરની ત્રિજ્યા હોવાને કારણે આ જે બ્લુ આઈનો પાર્ટ છે તે ટકરાતાની સાથે જ હજી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના જે ઉત્તરનો વિસ્તાર છે તેને અસર કરશે। આ બ્લુ આઈનો પાર્ટ સત્તાવાર રીતે હવામાન વિભાગ તરફથી પણ જણાવી દેવામાં આવ્યું છે કે વાવાઝોડું જે છે તે ટકરાઈ ચૂક્યું છે। લખપત સહિતના આસપાસના વિસ્તારો, નલિયાના આ તમામ જગ્યાએ પવનની ગતિ 125 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકથી પણ વધુ જોવા મળી રહી છે। ન્યૂઝ 18 કેમેરામેન સુનિલને કહીશ કે વધારે ઝૂમ કરીને બતાવે। જે રીતે આ દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો કે ગુજરાતનો જે તટીય વિસ્તાર છે ત્યાં આગળ વાવાઝોડું ટકરાઈ ચૂક્યું છે। અને સૌથી વધારે મહત્વની વાત, આ જે બ્લુ આઈનો પાર્ટ છે તે 50 કિલોમીટરની ત્રિજ્યાના હોવાને કારણે હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે વધુ સમય થશે પસાર થતા। હાલમાં જે પરિસ્થિતિ છે તે કપરી હશે ગુજરાતના તમામ લોકો માટે, કારણ કે જે લોકો મહેસૂસ કરી રહ્યા છે, જે લોકો ઘરમાં બંધ છે ભારે પવનને કારણે અને વાવાઝોડાની અસરને કારણે, તેઓ માટે। અને બીજી તરફ એ પરિસ્થિતિ હાલના દ્રશ્યોથી સ્પષ્ટ થઈ રહી છે કે સ્પષ્ટ રીતે વાવાઝોડું ટકરાઈ ચૂક્યું છે। બીજી મહત્વની વાત એ પણ હવામાન વિભાગ તરફથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે કે વાવાઝોડાની ગતિ થોડી વધી ગઈ છે। જે પહેલા 3, 6 અથવા 9 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આગળ વધતું હતું તે હવે પૂરેપૂરું 12 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે। જેના કારણે પરિસ્થિતિ એ છે કે જેમ જેમ આ વાવાઝોડું આગળ જતું જશે પરિસ્થિતિને થોડું વધુ ખરાબ કરતું જશે। મહત્વની વાત અહીંયા સમજવાની એ છે કે વાવાઝોડાનો જે બ્લુ આઈનો પાર્ટ માનવામાં આવે છે કે જ્યારે ટકરાય ત્યારે કહેવામાં આવે છે કે વાવાઝોડું ટકરાયું છે, તેની આગળનો જે ભાગ છે તે મોટાભાગના ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે કે જ્યાં આગળ ભારે પવન સાથે વરસાદ હતો તેને પાર કરી ચૂક્યું છે। તો હાલના દ્રશ્યો દરિયાના જે છે અમે આપને બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં દરિયો તોફાની બની ગયો છે અને ગામની અંદર પાણી ઘૂસી રહ્યા છે। વીજ કરંટ કેટલાક વિસ્તારોની અંદર બંધ થઈ ચૂક્યો છે। વૃક્ષો ધરાશાયી થવાનું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। વાવાઝોડામાં ઉછળતો દરિયો ડબલ કરંટ સાથે જોવા મળી રહ્યો છે। જે સેફટી વોલ હતી તે સેફટી વોલ તૂટી ચૂકી છે। નલિયાના દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। કાળું ડિબાંગ વાદળ થઈ ગયું છે આખું નલિયાની અંદર અને મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં નલિયામાં એવું જોવા મળી રહ્યું છે કે જે વિઝિબિલિટી છે તે શૂન્ય સુધી પહોંચી ચૂકી છે। લોકો ઘરની બહાર નીકળતા પણ ડરી રહ્યા છે અને તમામ લોકો જે લોકો જોઈ રહ્યા છે ન્યૂઝ ચેનલ તેઓને પણ વિનંતી છે કે ઘરની બહાર ન નીકળવું, કારણ કે વાવાઝોડું હવે ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યું છે। અને અહીંયા આગળની જે પરિસ્થિતિ છે કે બ્લુ આઈનો આ જે પાર્ટ છે તેની આસપાસનું વાવાઝોડું અંદર આવી ચૂક્યું છે। લેન્ડફોલની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ચૂકી છે। 3 થી 4 કલાક એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વાવાઝોડાને જતા લાગે છે, કારણ કે 12 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જ વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે। પરિસ્થિતિ અહીંયા એ પણ થશે કે પહેલી એક જે લેયર છે કે જેમાં 150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે અને ત્યારબાદ પવન થોડો શાંત થશે, વરસાદ ઓછો થઈ જશે। આપને થશે કે હવે વાવાઝોડું ગયું, પરંતુ તેવું નથી, કારણ કે વાવાઝોડું ફરી એક વખત ફરીને ત્યાંથી નીકળશે। એટલે કે તેનું જે પડ છે ને તે ત્યાંથી પરત ફરી એક વખત નીકળશે। હાલમાં લાઈવ તસવીર નલિયાની અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ કે જોરદાર પવન સાથે વાવાઝોડું પસાર થઈ રહ્યું છે। મોટા ભાગના લોકો ઘરની બહાર ન નીકળી અને આ વાવાઝોડાને કારણે ડરના માહોલમાં છે। આપ તમામ લોકોને જણાવી દઈએ કે જે લોકો પણ આપના સગા સંબંધીઓ ત્યાં આગળ રહે છે તેઓને પણ વારંવાર કહેતા રહેવું કે એક વખત આ પરિસ્થિતિ ગઈ ત્યારબાદ ઘરની બહાર તુરંત ન નીકળે। ફરી એક વખત થપાટ મારી શકે છે આ વાવાઝોડું, જેના કારણે જ બિપોર જોઈને લઈને તમામ લોકો કહી રહ્યા છે કે આ એવું વાવાઝોડું છે કે જેને પ્રિડિક્ટ કરવું, જેને સમજવું અઘરું થઈ રહ્યું છે। અને આ દ્રશ્યો પાણીના પણ અમે આપને બતાવ્યા કે દરિયો જે છે તે સેફટી વોલ તોડીને અંદર આવી રહ્યા છે। જે દ્રશ્યોમાં સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે। કેટલાક માછીમારોને સમજાવ્યા હોવા છતાં તેઓ ગયા હતા દરિયા કિનારે અને તેઓને પણ પ્રશાસને હટાવવાની જે કાર્યવાહી છે તે શરૂ કરી દીધી છે। વૃક્ષો જર્જરિત થઈ મકાનો ઉપર પડી રહ્યા છે, કેટલાક વૃક્ષો વળી ગયા છે, કેટલાક વૃક્ષો તૂટી ગયા છે। પરિસ્થિતિ એ આવી ચૂકી છે કે જ્યાં વ્યક્તિ પણ ઊભો નથી રહી શકતો ત્યાંથી ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા તમામ જગ્યાએથી અપડેટ્સ અમારી સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે, જે અમે આપને આપી રહ્યા છે। આફત આવી ગઈ છે, વાવાઝોડું ટકરાઈ ચૂક્યું છે। કચ્છમાં બિપોર જોઈ વાવાઝોડું ત્રાટક્યું છે। વાવાઝોડાને લીધે મોટું નુકસાન હોવાની પણ હાલમાં જાણકારી મળી રહી છે, પરંતુ સરકારના જે મંત્રીઓ છે તે ઉપસ્થિત છે। कि बहुत डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड अभी कच्छ और द्वारिका जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में एंटर कर चुके हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो केंद्र बिंदु की बात आप कहते हैं उसका आकार क्या होगा? आप कह रहे हैं कि केंद्र बिंदु बड़ा है, उसका आकार क्या होगा? कुल आकार 700 किलोमीटर। साइक्लोन का जो
केंद्र है इसको आई बोला जाता है। और ये जो आई आप देख रहे हैं यहाँ, इसका डायमीटर है लगभग 50 किलोमीटर। सो ये जो स्पीड में चल रहा है अभी, जैसे 13-14 किलोमीटर स्पीड में अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कंप्लीटली आई वॉल क्लाउड पूरा अंदर जाने के लिए लगभग 5 घंटा लग जाएगा। और सर उस वक्त इसीलिए हम बोल रहे हैं मिडनाइट तक ये पूरी साइक्लोन का जो आई रीजन है और आई वॉल यानी वॉल क्लाउड है वो लैंड पे आ जाएगा। और उस वक्त विंड की रफ्तार कितनी होगी सर जब आई टकराएगा तट से? जब आई टकराएगा, आई की रीजन में तो फॉर टाइम बिंग स्मॉल पीरियड के लिए काम विंड हो जाता है, मगर जब आई वॉल एंटर करता है तब सबसे ज्यादा विंड होता है। सो जहां आई टकराएगा यानी जखौ के आसपास जो एरिया है जहां आई पास करेगा, पहले फॉरवर्ड सेक्टर ऑफ द आई वॉल आएगा और तब विंड स्पीड बढ़ते हुए 115 to 125 kmph हो सकता है। फिर जब आई पास कर जाएगा, फिर रेयर सेक्टर साइक्लोन का आएगा, तो फिर जब 1 घंटे के लिए कि आधा घंटे के लिए जो विंड स्पीड कम हो गया होगा, फिर विंड स्पीड बढ़ेगा और 115 to 125 kmph फिर विंड आ सकता है। मैं आपको ये से एक्सप्लेन करता हूँ। जब अभी ये वॉल क्लाउड अप्रोच कर रहा है कच्छ कोस्ट की तरफ, यहाँ भी विंड स्पीड बढ़ रहा है और ये विंड स्पीड का डायरेक्शन यही होता है कि ईस्टर्ली डायरेक्शन से जाकर वेस्ट की तरफ विंड जा रहा है। अभी जैसे ये मूव करके यहाँ तक आ जाएगा लैंडफॉल के टाइम, तब यहाँ विंड कम हो जाएगा, नहीं तो वेरी स्लो हो जाएगा विंड, जैसे 5 to 10 kmph। इसके बाद ये जो रियर सेक्टर है, ये रियर सेक्टर यहाँ आएगा, फिर हेवी रेन शुरू होगा और फिर स्ट्रॉन्ग विंड भी शुरू होगा। इसीलिए जब ये आई पास कर रहा होगा तब यानी कभी भी कोई भी व्यक्ति ये महसूस करे कि ऑल ऑफ ए सडन बारिश बंद हो गया, नहीं तो ऑल ऑफ ए सडन विंड बहुत कम हो गया, ये मत सोचिए कि साइक्लोन डिसिपेट हो गया। मगर साइक्लोन का आई आपका रीजन ऊपर जा रहे हैं, ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव है। आपको वेट करना है जब तक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये नहीं बोला है कि साइक्लोन कंप्लीटली अंदर चला गया, तब तक आप सेफ प्लेसेस में रहिए, साइक्लोन शेल्टर के अंदर रहिए, बाहर मत आइए। सर क्लाउड वॉल और आई का जो जिक्र किया, कितने घंटे तक लगभग ये कच्छ और जकाऊ के इस रीजन में रहेगा? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कितने सेंटीमीटर जो रेनफॉल है आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 घंटे मिडनाइट तक इसका असर रहेगा पूरा आई वॉल आई पास करने के लिए। और इसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ कहाँ कहाँ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकता है। और इसके साथ साथ जैसे यहाँ विंड ऐसे जा रहे हैं, अभी साउथ से नॉर्थ विंड टकरा रहे हैं, जो लो लाइंग एरिया है कच्छ में और द्वारिका में या मोरबी में और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ इनंडेशन कर सकता है। और सबसे ज्यादा इनंडेशन कच्छ एरिया में हो सकता है जब ये पास करेगा। और हमारा प्रबंधन जो है वो है 2 से 3 मीटर हाइट का सामुद्रिक लहर आ सकता है और इनंडेशन करा सकता है। सर आपने कहा कि जब केंद्र बिंदु पास होगा, जो आई है 50 किलोमीटर जिसका डायमीटर आपने बताया, तो वो जब पारित करता है तो उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि तब हवाएं कम चलेंगी या बारिश नहीं होगी। वो कितना, उसका डायमीटर क्या होगा जो आप कह रहे हैं जब ये आई एरिया कितना होगा? देखिए साइक्लोन मूव कर रहा है ना, जब ये तट को टकराएगा, ऑल ऑफ ए सडन जो अभी हेवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड चल रहा है वो कम हो जाएगा। तो इससे महसूस होगा कि ये आई आ रहे हैं अभी। और ये आई मूव करने के लिए जब डायरेक्ट जखौ के पास आप देखेंगे लगभग 2 घंटा लग सकता है कंप्लीट आई जाने के लिए, कि 1 घंटा लग सकता है। फिर इसका जो रियर सेक्टर है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये फिर आ जाएगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और जब फिर रियर सेक्टर आएगा, फिर विंड डायरेक्शन जो अभी ईस्ट से वेस्ट विंड था, अभी विंड वेस्ट से ईस्ट हो जाएगा, माने ऑपोजिट विंड हो जाएगा। सो जो पेड़ पहले घिर नहीं रहा था, अभी वो पेड़ घिर जाएगा। जो मकान टूटा नहीं था, अभी वो मकान टूट जाएगा, क्योंकि अभी ऑपोजिट विंड से सेम स्पीड से विंड आ रहा है, इसीलिए जैसे धक्का लगता है, इसलिए इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए जब आई जो एरिया में आई पास कर रहे हैं वहाँ 2 बार आई वॉल आ रहे हैं, इसलिए वो एरिया सबसे ज्यादा खतरनाक है और डेंजरस है। तस्वीरों में जो दिखता है सर, गोल्ड साइक्लोन जिस तरीके से मूव करता है, उसी को आप कह रहे हैं आई वही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। मैं आपको आई दिखा रहा हूँ ना, यहाँ ये आई है जहाँ आप व्हाइट
वो आई है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये आई वॉल है। ओके सर, आपने ये भी कहा कि जब केंद्र बिंदु आएगा तो हवाएं नहीं चलेंगी, बारिश कम हो जाएंगी, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बहुत हवाएं रफ्तार सबसे ज्यादा, तो ये क्या कंफ्यूजन है? जब आई आएगा, आई जिस एरिया के ऊपर होगा तब ऑल ऑफ ए सडन आपका विंड स्पीड कम हो जाएगा, बारिश भी कम हो जाएगा 1 घंटे के लिए, नहीं तो 1.5 घंटे के लिए। इसके बाद फिर जो पिछला हिस्सा आएगा साइक्लोन का, फिर ऑल ऑफ ए सडन आपका बारिश तेज होगा, हेवी रेन होगा, फिर विंड बढ़ेगा। एरिया जहां आई क्रॉस करेगा, माने सेंटर क्रॉस करेगा, वहां 2 बार ऐसे स्ट्रांग विंड एंड हेवी रेन देखने को मिलेगा। सर, आपने कहा कि अभी 70 किलोमीटर दूर जखाऊ पोर्ट या उस तट के से है वो, तो वहां पे पहुंचने में भी कितना टाइम उसके सेंटर को लगेगा? देखिए, जैसे पूरा जाने के लिए 5 घंटा लगेगा, मैं बोल रहा हूँ, सो सेंटर एग्जैक्टली जाने के लिए 2.5 घंटा लगेगा। सर, कितना स्ट्रक्चर डैमेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह की कंडीशन बता रहे हैं उससे सबसे ज्यादा डैमेज कोस्टल लाइन पे रहने वाले लोगों के घर और जो बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको होगा, तो किस तरीके की हिदायत दी गई है फर्दर? देखिए, हमारा जो पूर्वानुमान है वो अभी भी जारी है। जो विंड स्पीड बोला था वही विंड स्पीड हम बोल रहे हैं, इसलिए जो स्ट्रक्चरल डैमेज होगा हम पहले बोले थे, अभी वो जारी है। पाथ में कोई चेंजेस नहीं है, वही पाथ है जो बात वही है जब जोखाऊ के आसपास क्रॉस करके हम बोले थे। हम भी अभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची और मांडवी के बीच में जोखाऊ के आसपास ये तट को पार करेगा। एंड सर, अभी आप बोल रहे हैं कि आई ऑफ द साइक्लोन में स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रही है। साइक्लोन का जो फॉरवर्ड मूव 15 किलोमीटर पर आवर अभी है, बट आई ऑफ द साइक्लोन व्हेन जब वो हिट करता है कोस्ट पे, देन इन द आफ्टरमैथ सबसे ज्यादा डैमेज होता है उससे, क्योंकि पीछे से जो विंड से वो आती है और फिर हवा टकराते हैं 2 डायरेक्शन। इसका मतलब नहीं कि आफ्टरमाथ जो आता है इसमें ज्यादा विंड स्पीड होता है। आप एक पकड़ लीजिए, एक बैम्बो है यहाँ, फॉर एग्जाम्पल बैम्बो स्टिक है, आप इसको निकालना चाहते हैं, आप क्या करते हैं? इससे झुकते हैं ऐसे, फिर ऐसे झुकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में।